Bismillahirrahmanirrahim. This is Sarvathina SS Biology from Division Public School and College Sahiwal. Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is Sound Waves, chapter number 10. First of all, there are objectives. After completing this lecture, the students will be able to define wave, explain what causes waves, compare transverse and longitudinal waves, investigate sound waves or longitudinal waves. Contents: Introduction, what causes waves, transverse and longitudinal waves, sound waves or longitudinal waves. Approach. Have you ever observed waves around you in your daily life? Try to find out some examples. For example, when we throw a stone in a pool of water, waves are produced in water. Here you can observe waves in a pool of water. Definition. First of all, there is the definition of a wave. A wave is a disturbance that transfers energy from one place to the other. वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस को, ऐसी हलचल को, ऐसी हरकत को कहते हैं दैट ट्रांसफर, जो मुंतकिल करती है एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एक से दूसरी जगह पर. वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड्स, gases and solids. Many waves require some material to travel through. This material thing is called a medium. जितनी भी वेव्स होती हैं उन्हें रिक्वायर होता है सम मटेरियल, कोई चीज़ जिसमें से वो ट्रैवल करें. इस मटेरियल थिंग को हम मीडियम कहते हैं. ये हमारे पास मीडियम की डेफिनेशन है. मीडियम तीन तरह के हो सकते हैं: गैसेस जैसे कि एयर, लिक्विड्स जैसे कि वाटर, सॉलिड्स जैसे कि रोप और अ मेटल. These all act as mediums. What causes waves? Vibrating movements of some substance can create waves in it. किसी भी चीज़ के अंदर जो वाइब्रेटिंग मूवमेंट्स होती हैं वो वेव प्रोड्यूस कर सकती हैं. अब हम वाइब्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं. वाइब्रेशन इज अ रिपीटेड टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे और अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जो मोशन होती है ऑफ सम सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की आगे पीछे ऊपर नीचे होने वाली मूवमेंट जो बार बार दोहराई जाती है, रिपीट होती है, उसे वाइब्रेशन कहते हैं. होल्ड वन एंड ऑफ अ रोप एंड मूव इट अप एंड डाउन. अगर आप एक रस्सी को पकड़ते हैं, उसके एक किनारे से उसे ऊपर और नीचे मूव करते हैं, you will produce waves in it. We can create waves in water by dipping our finger again and again. Types of waves. There are two types of waves: transverse waves and longitudinal waves. First of all, there is transverse waves. A wave in which particles of the medium move perpendicularly to the direction of the wave is called a transverse wave. ऐसी वेव जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उससे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं. Waves that are produced in water are transverse waves. The highest point of a transverse wave is called a crest. ये हमारे पास टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स अबाउट द ट्रांसवर्स वेव्स. वन इज क्रेस्ट एंड द अदर वन इज ट्रफ. हाईएस्ट पॉइंट किसी भी ट्रांसफर वेव में जो होता है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, and the lowest point between two crests is called a trough.
और लोएस्ट पॉइंट जो दो क्रेस्ट के इन बिटवीन में आता है उसे हम ट्रफ बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रांसफर वेव इन अ रोप। अगर हम रोप को एक तरफ से पकड़ के मूव करते हैं अप एंड डाउन, तो हम देखेंगे कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, जो मूवमेंट है वो उसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पर टू एरोस जो आपको एक दूसरे से 90 डिग्री पर नज़र आ रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव है। By moving the free end of a rope up and down, we can create transverse waves. Here you can see crest and trough. In this diagram, the highest position or highest point in the wave is known as crest, while the lowest point in between two crests is known as trough. So crest and trough, again crest and trough, these all together makes a transverse wave. Next is longitudinal waves. A wave in which particles of a medium move back and forth parallel to the direction of the wave is called a longitudinal wave. ऐसी वेव जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे एंड पीछे, और जो डायरेक्शन है वेव की प्रोड्यूस होने की वो मीडियम के पार्टिकल के साथ पैरेलल होती है, मीन्स के एक ही डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। जैसा कि हमने ट्रांसवर्स वेव्स में देखा, वहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे है दोनों चीज़ें एक दूसरे से, पार्टिकल ऑफ अ मीडियम भी और डायरेक्शन ऑफ द वेव भी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ द वेव है और पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम है दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो हम इस वजह से इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। यहाँ पर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं डियर स्टूडेंट्स अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, compressions and rarefactions. The parts of a longitudinal wave का उतना हिस्सा where particles of the medium are compressed together, जितने हिस्से में मीडियम के पार्टिकल्स आपस में compressed होते हैं, दबे हुए होते हैं, करीब करीब होते हैं, उसको हम compressions बोलेंगे। While the parts of a longitudinal wave where particles of the medium are spread out, लॉन्गिट्यूडनल वेव का उतना हिस्सा जहाँ पर पार्टिकल्स मीडियम के एक दूसरे से स्प्रेड आउट दूर दूर होते हैं उसे हम रेयर फैक्शंस बोलते हैं। रेयर का मीनिंग होता है कम, फैक्शन कहते हैं हिस्से को। इस हिस्से में, इस जगह में पार्टिकल्स जो हैं वो कम होंगे तो उस हिस्से को रेयर फैक्शन बोलेंगे। जिस हिस्से में मीडियम के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उसको कंप्रेशंस बोलेंगे। हियर in this picture, if we pull and push one end of the slinky spring continuously, we can produce a longitudinal wave. You can observe here hand motion, and here are two labelings, compression and rarefaction. You are observing in compression there are the particles of the medium are compressed, they are more in number. रेयर फैक्शन वाले हिस्से में हम देखेंगे स्प्रिंग के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, खुले हुए हैं, कंप्रेस्ड नहीं हैं, तो इसको हम रेयर फैक्शन बोलेंगे। एज अ वेव मूव्स, जैसे ही वेव मूव करती है कंप्रेशन और रेयर फैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, क्योंकि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट हो रही होती है बैक एंड फोर्थ, आगे एंड पीछे। सो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के आगे और पीछे मूव करने की वजह से कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन प्रोड्यूस होते हैं, जो दोनों मिलकर लॉन्गिट्यूडनल वेव को बनाते हैं। साउंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर। These waves reach our ear and affect the eardrum. साउंड किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करेगी एयर में। ये वेव्स हमारे ईयर तक, कानों तक आएंगी और हमारे ईयर ड्रम को, जो कानों का पर्दा है, उसको उस पर असरअंदाज होगी। इस तरह से हम किसी साउंड को सुन सकते हैं। अ कंप्रेशन एंड अ रेयरफैक्शन इज कंबाइंड टू फॉर्म अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अ कंप्लीट वेव, यहाँ पर हम देख रहे हैं
उसमें दोनों चीज़ें होंगी, कंप्रेशन भी एंड रेयरफेक्शन, दोनों मिलकर एक कंप्लीट लॉन्गिट्यूडनल वेव को बनाते हैं। Sound waves are longitudinal waves. Sound waves traveling through air is an example of a longitudinal wave. When a drummer beats a drum, जब एक ढोल बजाने वाला ढोल को ड्रम को बीट करता है, बजाता है, the surface of a drum vibrates, जो ड्रम की सरफेस होती है वो वाइब्रेट करती है, and creates a disturbance in the air beside it, और जो साथ में उसके एयर होती है उसमें एक डिस्टर्बेंस, एक हलचल क्रिएट हो जाती है। When the drum head moves to the left, ड्रम हेड जिससे हम ड्रम बजाते हैं, जब वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, it compresses the particles of air, एयर के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर देगा, आपस में दबा देगा, and creates a compression, और एक कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। In this picture we can observe compressions जो कि हमें डार्क ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। जैसे ही ड्रम हेड लेफ्ट साइड पर आया उसने एयर को कंप्रेस्ड कर दिया। When the drum head moves to the right, और जब ड्रम हेड राइट की तरफ जाएगा, particles of the air on the right move farther apart, वो और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जो राइट साइड पे एयर के पार्टिकल्स होंगे, creating a rarefaction, और इस तरह से rarefaction प्रोड्यूस होगा। जब ड्रम हेड लेफ्ट साइड पे जाएगा कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई, जब राइट साइड पे आया rarefaction। These compression and rarefaction travel through the air, ये एयर में मूव करेंगे as longitudinal wave, एक longitudinal wave बनकर। When the disturbance in the air reaches our ears, जब ये disturbance जो एयर के अंदर प्रोड्यूस हुई है हमारे कानों तक जाएंगी, we hear the sound of the drum, तो हम ड्रम की आवाज़ सुन सकेंगे। In this picture you can see very clearly compression and rarefaction. कंप्रेशन में हमें एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, कंप्रेस्ड हैं और नंबर में ज़्यादा हैं, जबकि रेयर फैक्शन में एयर के पार्टिकल्स जो ग्रीन कलर के हैं वो हमें थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम रेयर फैक्शन बोलेंगे। सो कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, अगेन कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, ऑल टुगेदर will make a longitudinal wave. Students, now it's time to recapitulate our lecture. Define transverse waves. Define longitudinal waves. What are compressions? What are rarefactions? Assignment from this lecture is write and learn these short questions. Define wave. Define vibrations. How does sound travel? Define medium. What is a crest and a trough? Thank you, students.